Hello, students. Today we will discuss the exercise 10.3. In our earlier classes, we have discussed dot product of two vectors. Now, related question we will solve now. Exercise 10.3. Now, in your book, there are questions. That is, the question is that find the angle between vector A and B. आपको एंगल निकालना है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी. क्या निकालना है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. क्योंकि क्या क्या दिया हुआ है? दैट्स मैग्नीट्यूड इज √3. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज गिवन √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज गिवन 2. And another thing, that is the dot product of these two vectors, that is also given a dot b, that is equivalent to the √6. It is given by the formula. Whenever the angle between two vectors, if it is to be calculated, then how we will calculate? First we will write here the formula cos theta equal dot product of two vectors divided by its magnitude. Right, guys? Now check them whether according to the formula all quantities we have to solving it. Now if we have a place there, so a dot b that is given √6 and magnitude of a is given √3 and magnitude of b is given 2. Now it will written again √3 √2 upon √3 into 2. This is cancelled. Again we will write √2 over √2 multiply √2. This cancel multiply over this is the 1 upon √2. Now cos theta that is equivalent to the cos theta क्या आ गया 1 upon √2 और क्या कह सकते हैं which implies theta आ गया cos inverse 1 upon √2. और कहाँ पर ये वैल्यू 1 upon √2 देता है थीटा? जब cos 1 upon √2 it means pi/4 is the angle between that. This is the question of 10.3 question 1. So students properly understood the question, then try to solve properly. Come on next question. So guys पहले आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आइडेंटिफाई योरसेल्फ फर्स्ट. Thereafter which data you should require, is it available in question or maybe derived from the question, analysis it and try to check it. Students, today we will discuss the exercise 10.3 in which we will discuss the question number 1, that is find the angle between vector A and vector B. क्या निकालना हमें? एंगल निकालना है. एंगल बिटवीन वेक्टर A and vector B when the magnitude of A, if the magnitude of A vector is given, that is √3 and the magnitude of B vector that is also given 2. Now there is the dot product of A and B is also given, that is √6. अब आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट करना है. सो दैट्स वी शुड रिक्वायर्ड द फॉर्मूला बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ एन एंगल that is defined by vector A dot vector B divided by vector A and magnitude of vector B. According to the formula, whether the quantities are available, yes, the dot product of two vectors is given there and the magnitude of A and B is placed here. So these quantities we should place in the question and we will get the cos theta, that is over √3 into 2. Again √6 is written √3 into √2 over √3 and 2 is written √2 and √2. This cancel by this cancel by this. Then cos theta, which is equivalent to the 1 upon √2, or we can say theta equal cos inverse 1 upon √2, which is equivalent to the pi/4. So guys, these two vectors
angle between the two vectors where it is mentioned, that is pi by 4. Now come on question number 2, which is question number 2. Listen, angle between two vectors. Find the angle between two vectors. The vectors are given I cap minus of 2j cap plus of 3k cap. This is a vector, let's suppose that is A, and another vector, that is B vector, which is written 3i minus 2j plus k cap. This is another vector. Now find out the angle between vector A and vector B. So we will first write down the formula between two vectors, that is dot product of these two vectors divided by magnitude of A, magnitude of B. Again, for which we should require dot product of two vectors and magnitude of these vectors. Now we will start dot product A vector dot B vector, which is equivalent I cap minus 2j cap plus 3k cap dot 3i cap minus 2j cap plus of k cap. अब डॉट प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई नंबर से कर लें, तो 1 का प्रोडक्ट 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 3, और डॉट होगा वेक्टर का वेक्टर से, सेम -2 प्रोडक्ट विद -2 which convert into +4, dot will occurs into between j dot j plus 3 1 ja 3 and dot will come between k cap dot k cap. Now it will be written like that, 3 I cap dot I cap is 1 plus 4 plus 3 which is equivalent to the 10. This is the dot product of A and B. Now another terms we should require for solving this question, magnitude of A, magnitude of B. तो magnitude of A equivalent, जब आप क्या करेंगे, वेक्टर को लिख दें इसके अंदर I cap minus of 2j cap plus of 3k cap, राइट. अब क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने का जो प्रोसीजर आपको बताया हुआ है, यहाँ कितना है 1 स्क्वायर, यहाँ कितना है -2 स्क्वायर, यहाँ कितना है 3 स्क्वायर, सिंप्लीफाइड करोगे कितना आ जाएगा 1 4 9, कितना हो गया √14. अगेन वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, वो कितना आ जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस ऑफ k कैप. तो मैग्नीट्यूड सेम में कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ -2 प्लस 1 स्क्वायर, अगेन दैट इज √14, राइट. नाउ कम ऑन एंगल कॉस थीटा. तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल डॉट प्रोडक्ट दैट इज tan divided by √14 into √14, or we can say 10 over 14, 2 5 जा 2 7 जा, तो थीटा कितना हो गया cos इनवर्स 5/7. दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करें, डाटा आप जज करें, चेक करें whether I will written in my notebook that should be similarly to the given question in the book or not. Thereafter you should start the question for solving. Now come on another question, find the projection of vector. Question number 3, there is given projection of vector. Projection of vector I cap minus j cap on the vector I cap plus j cap. तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द वेक्टर, सपोज दिस इज द ए वेक्टर, this is the b vector, that you have just supposed it. So now projection of vector A on vector B, that is defined by dot product of these two divided by magnitude of B, or we can say A vector dot B cap. Same.
Now, for which we should require two terms, dot product of these two vectors and only magnitude of b vector. Now start. A vector dot b vector equal I cap minus j cap dot I cap plus j cap. डॉट कैलकुलेट करेंगे आप I डॉट I, राइट, प्लस I डॉट j माइनस j डॉट j माइनस j डॉट I, ठीक है, फिर माइनस j डॉट j. आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 प्लस I कैप डॉट j कैप माइनस j डैट डॉट I कैप माइनस ऑफ 1, राइट है. अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर I माइनस जे, यहाँ पर I प्लस जे, इसका इससे डॉट किया, इसका इससे डॉट किया, इसका इसके साथ डॉट किया, इसका इसके साथ डॉट किया, ये 1 लिख दिया, ये सेम है, ये भी सेम है और ये भी 1 लिख दिया. इसके बाद आप चेक करते हो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है. तो आप यहाँ साइड में मेंशन करते हो कि I डॉट जे इक्वल j डॉट I, बोथ ऑफ देम आर सेम. So from where I dot j minus of j dot I, that is I dot j. So again the answer is 0. तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0. तो अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ b भी कैलकुलेट करना है. वैसे नेसेसिटी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि द न्यूमरेटर ऑफ दिस cos थीटा दैट इज a डॉट b. इफ इट इज 0 देन रिजल्ट इज ऑलवेज 0. पर क्वेश्चन में अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ b भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं. वो कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स √2. तो सबसे पहले ये तीनों चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली. नाउ कम ऑन प्रोजेक्शन. अब यहाँ पर आ जाएंगे तो प्रोजेक्शन कितना आया, a डॉट बी की जगह क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर इक्वल a vector dot b vector divided by magnitude of b vector. A dot b is 0, this is √2, answer is 0. This is the projection of vector a on vector b. तो guys पहले प्रॉपरली इस क्वेश्चन को समझ लें, thereafter you solve in a proper manner. Now come on question 4. क्वेश्चन 4 में हमें पूछा गया है projection of the vector on the vector. Again same question, so try to solve this question. फिर कह रहे हैं there are 3 vector, it is unit vector, और कह रहे हैं show that they are mutually perpendicular to the each other. अगर कह रहे हैं तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए सबसे पहले. तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स आपको जो दिए गए हैं दैट इज लाइक दैट 2i plus 6k cap. One vector is given like that, suppose that is a vector. Another b vector is given 1/7 3i minus of 6j plus of 2k. Another c vector third is given 1/6 6i plus 2j minus of 3k. There are 3 vectors are given. और कह रहा है these are unit vector. अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट. C इक्वल 1. तो चेक करके देख लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, 7 का डिवीजन सेम रहेगा. तो यहाँ लिख लें आप, अगर आपको कोई तरह का डाउट है तो 2i प्लस 3j प्लस 6k, राइट है. देन 1/7, ठीक है, रूट के अंदर ही रखेंगे सारी क्वांटिटी को. स्क्वायर ऑफ 2 इज द 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज द 9, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 और स्क्वायर ऑफ 7 इज लाइक दैट, ठीक है. तो कितना आ गया आपका 49. 49 को 49 से कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 1, राइट. बिकॉज दिस 7 is to be taken individually to the each of the terms.
So now the coefficient of I का 2/7 whole square plus 3/7 whole square plus 6/7 whole square, or we can say 7 square is to be taken outside, then the square of these things is to be added, then it will be the 49 divided by 49, which comes 1. So magnitude of all three vectors are same, that is 1 if they are unit vector. It is mentioned in the question. शो करना है, शो कर दिया आपने. सेम आप बी वेक्टर को भी शो करेंगे, सेम आप सी वेक्टर को भी शो करेंगे इक्वल 1. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर. अब कह रहे हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर. मीनिंग क्या हुआ, ए का बी के साथ डॉट जीरो आना चाहिए, बी का सी के साथ डॉट जीरो आना चाहिए, सी का ए के साथ डॉट जीरो आना चाहिए. जैसे ए और बी, इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज टू बी इक्वलेंट टू द 0. तो डॉट करके देख लो आप. 3 2 जा 6 -18 + 12 रिजल्ट 0. सेम बी का सी से कर लो. 6 3 जा 18 -12 -6 2 4 -18 दिस इज +18, द रिजल्ट इज 0. ऑब्वियसली दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर. तो सॉल्व लाइक दैट. ए डॉट बी जीरो करना है, बी डॉट सी जीरो करना है, सी डॉट ए भी आपको जीरो करना है. अंडरस्टूड. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज देयर इज गिवन x minus of a dot x plus a which is equals to the 8, और कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर. राइट. तो आपको क्या करना है, डॉट सबसे पहले ओपन करना है. x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इक्वल 8. और आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वेन एवर द वेक्टर्स आर सेम देन द एंगल बिटवीन देम दैट इज 0 डिग्री. सो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर होल स्क्वायर प्लस दिस इज सेम अगेन दिस इज सेम एंड दिस इज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 8. अब स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ आपको क्वेश्चन में कुछ और भी डाटा दिया हुआ है कि ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर. ये भी दिया गया है कि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है. ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर विच इम्प्लाइज, अपने आप ये रिजल्ट देता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर इज 1. नाउ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है. कम्यूटेटिव विच मीन्स ए डॉट बी इक्वलेंट बी डॉट ए. सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल. सो नाउ हम क्या लिख पाएंगे अब, स्क्वायर प्लस ये और ये तो कैंसिल ही हो गया. तो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर इक्वल 8 और मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 इक्वल 8. राइट. यहाँ से आपके पास क्या आ गया 9, और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ x इज 3. तो मैग्नीट्यूड ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, +3, नॉन नेगेटिव नंबर. सो गाइज सॉल्व लाइक दैट. इस क्वेश्चन के बिहाफ पर अगर आप आगे चलेंगे तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है. सेम मैनर में आपको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आंसर देना है. सेम मैनर में डॉट प्रोडक्ट ओपन करना है, सिंप्लीफाइड करना है और गिवन एन आंसर टू दैट क्वेश्चन. अगेन प्रोडक्ट इन क्वेश्चन 7 अगर हम बात करें तो वहाँ भी आपको प्रोडक्ट ही पूछा गया 2 वेक्टर्स का. तो जनरलाइज जो प्रोडक्ट आ रहा है वो राइट कर दो. यहाँ दिया गया है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर. इसका क्या लेना, आपको डॉट लेना है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर के साथ. अब आप डॉट कैसे लेंगे, देखो 3 2 जा 6 कर दो सबसे पहले. 3 2 जा 6
और डॉट आएगा वेक्टर टू वेक्टर, इट मीन 6 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका इसके साथ डॉट कर लो 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका इसके साथ डॉट करेंगे 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका इसके साथ डॉट करोगे देन दिस विल रिटर्न बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आपको पता है सेम वेक्टर देन इट विल रिटर्न लाइक दैट, एंड दिस इज द बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, so they are same, so it will return plus 11 a vector dot b vector, right है, minus of 35 magnitude of b whole square is written of this product of these two vectors. Now again the question is that next question is there, हमें बोल रहा है find the magnitude of two vector। तो अब आपको डिफरेंट थिंग्स पूछी जा सकती है इन ए डिफरेंट मैनर। द क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ, राइट। तो फॉर्मूला आपने कह रहा है कि उनके मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करो जबकि उनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। समझ गए चीज, दैट इज सपोज दैट इज इक्वल के। अब हम जानते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर दैट इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला। नाउ द क्वांटिटी ऑफ दिस फॉर्मूला विच इज रिक्वायर्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू इंडिविजुअल वेक्टर्स इन विच देयर आर थ्री थिंग्स, डॉट प्रोडक्ट this here is given theta, dot product is given, थीटा कितना दिया हुआ है, देयर इज गिवन 60 डिग्री, तो cos 60 हो गया कि नहीं हुआ यहाँ पे। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो गिवन 1/2 ओवर, दोनों की वैल्यू सेम है जो हमें निकालनी है के, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज के, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज के विच इज लेट। नाउ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 अपॉन के स्क्वायर, तो क्या हो गया, के स्क्वायर हाफ इक्वल हाफ दैट इज 1, और वी कैन से के इक्वल प्लस माइनस 1 बट के इज प्लस 1 बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है, thereafter you should start to solve the question in a proper manner। उसके लिए आपको एक ही चीज है, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें और फिर प्रॉपरली सॉल्व करें। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 10.3। देयर इज गिवन वेक्टर ए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिया हमने, ए बी सी। देयर आर थ्री वेक्टर्स आर गिवन such that a plus lambda b is perpendicular to the vector c, find out the lambda। There are three vectors are given, a is given 2i plus 2j plus 3k cap, right, and b vector is given which is minus of I cap plus of 2j cap plus of k cap, and another c vector is given that is 3i cap plus j cap। अब ये कह रहा r such that a vector plus lambda b vector, a vector plus lambda b vector is perpendicular to the c vector, then find out the value of लैम्डा। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ लैम्डा, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो अब आप सिंपल सी एक चीज समझे, मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट में एक क्वेश्चन बनता है फाइंड आउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, सेकंड क्वेश्चन जनरेट होता है कि देयर आर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, थर्ड क्वेश्चन बनता है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, फोर्थ क्वेश्चन बनता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, शो दैट। तो आपको क्या करना था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी 0 करना था।
और क्वेश्चन नंबर 4 बनता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फाइंड आउट एनी कांस्टेंट विच इज गिवन इनटू द वेक्टर. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. क्या आएगा ये? ए वेक्टर प्लस lambda b vector for which substitute the quantity vector a is there plus lambda vector b is here minus of I cap plus of 2j cap plus of k cap. Now after summation we are getting 2 minus lambda I cap, this combined with this again कितना आ गया प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, फिर प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप. चेक इट प्रॉपरली. के का के साथ एडिशन करोगे 2 प्लस लैम्डा 2, 3 प्लस लैम्डा, राइट. दिस इज द ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर. अब ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? सी वेक्टर के. तो आपको क्या करना है? इफ द वेक्टर is perpendicular to the vector C, which implies a vector plus lambda b vector dot c vector equal 0. Understood this? By this theory vector a plus lambda b is there. इसका c के साथ डॉट लेंगे. क्या लिखोगे? 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 plus 2 lambda j cap plus 3 plus lambda k cap. This is the a plus lambda b dot c vector. Where is c? 3i plus j cap. अब हमें क्या करना है? दोनों का डॉट 0 करना है. और डॉट में आपको पहले ही बताया था i का i के साथ डॉट होगा और j का j के साथ. रेस्ट ऑफ देम आर 0. तो इसका डॉट इसके साथ करेंगे और इसको आपको 0 के इक्वल लिखना है. आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है. केस नंबर 4 पे वेरी कर रहा है. आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2 माइनस लैम्डा क्रॉस 3 आई 1 कर दिया आपने. एक यहाँ पर कर लें 3 प्लस लैम्डा क्रॉस 1 के 1. रेस्ट ऑफ देम आर 0. यहाँ से आप सॉल्व कर लें इसको. प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्वल 0. यहाँ से आपके पास आ गया और ये नंबर है 9 माइनस ऑफ 2 लैम्डा इक्वल 0 विच इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल 9/2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली समझें और इसके बाद उसकी थीम पर वर्क करना स्टार्ट करें. तो जो नेग्लिजेंसी है, तो जो एरर की पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ वेरी लेस फॉर सॉल्विंग इन एनी क्वेश्चन. Again, come on next question. There is a question 12, 11 is also same. कह रहा एक वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है. तो आपको बताना है परपेंडिकुलर का मीनिंग हो गया उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा. क्वेश्चन नंबर 11 हम शो करते हैं. यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज है. आपको डॉट करने में कई प्रॉब्लम आ सकती है तो क्लियरली रखें. डॉट में नंबर का नंबर के साथ प्रोडक्ट कर देंगे और डॉट विल टेक्स प्लेस बिटवीन वेक्टर्स. दिस इज टू बी इन योर माइंड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11. देयर इज गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर a vector. This is the one of the vector which is perpendicular to another vector. Magnitude of a vector b vector minus magnitude of b vector a vector. ये शो करना आपको a वेक्टर b वेक्टर माइनस b वेक्टर a वेक्टर. ठीक है. हमें इनको परपेंडिकुलर शो करना है. जब परपेंडिकुलर शो करना है इट मीन्स इन दोनों का डॉट बराबर 0 करना है आपको. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलरिज्म मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए
बी वैक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वैक्टर इक्वल 0। ये शो करना हमें कि हम ये 0 शो कर देते हैं तो ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो अब इसको 0 प्रूफ करो, इनटू करो इनका डॉट प्रोडक्ट। अब मैंने आपको क्या कहा, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, मैग्नीट्यूड शुड बी रिटर्न इन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हम पहले इसका इसके साथ प्रोडक्ट कर लो, फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट कर दो, सेम फिर इसका इसके साथ कर लेना, फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट कर लेना। ठीक है, नाउ कम दिस इज द मैग्नीट्यूड ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर और वेक्टर बी, सो दिस इज रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी डॉट बाई वेक्टर बी। सेम इसका इसके साथ कर लें, यहाँ प्लस या माइनस, देन माइनस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन बी टू ए। कंप्लीट हो गया दोनों टर्म्स का। कम ऑन थर्ड टर्म, this will be the this with this, now plus plus plus। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। थर्ड टर्म कंप्लीट है, इसका इसके साथ। फोर्थ टर्म में क्या आ जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चेक कर लें आप प्रोडक्ट को। ठीक है, हर स्टेप पे चेक करते हुए चलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बिकम्स लेस। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, यहाँ पर चलते हो सेम, नो चेंज, यहाँ चलते हो कोई चेंज नहीं करना है आपको। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो इसको भी आप बी डॉट ए लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर। राइट, अब आप देख रहे हो ये टर्म इससे कैंसिल हो गई और ये दोनों भी कैंसिल हो गए। रिजल्ट कितना आ गया, 0। ऑब्वियसली द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन को प्रॉपरली समझें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें, और अपनी नोटबुक में यू जस्ट सॉल्व अप टू द 10.3 एक्सरसाइज ऑन बिहाफ ऑफ मेथड वट एवर इज डिलीवर्ड इन द वीडियो। सम ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट आई विल प्रेजेंट नाउ इन क्वेश्चन 13। इन क्वेश्चन 13 आपको क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू द 0, इसका a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर इसी का b के साथ लेना है, इसी का c के साथ लेना है और सबको ऐड कर देना है। नाउ यू विल गेट द रिजल्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, तो आपको एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आपको 3 वर्टेक्सेस आर गिवन a b c। तो आप क्या करें, ए बी बी सी सी ए वैक्टर कैलकुलेट करें। ए बी कैसे कैलकुलेट होगा, ओ बी माइनस ओ ए, मीनिंग बी वैक्टर से ए वैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेना। लाइक दैट यू विल कैलकुलेट द वैक्टर्स ए बी बी सी सी ए। और अब आपको कहा गया एंगल ऑफ ए बी सी कैलकुलेट करें, इट मीन्स बी पर एंगल है तो बी से ए की ज्वाइनिंग कर दो, बी से सी की ज्वाइनिंग कर दो। तो बी से ए की ज्वाइनिंग की तो मीन्स ए बी निकाल लो और एक सी भी निकाल लो। यहाँ दोनों वेक्टर्स आपके पास आ गए। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, ए बी डॉट सी बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी। कैलकुलेट कर लेंगे अब प्रॉपरली। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कोलिनियरिटी चेक करें। तो कोलिनियरिटी के लिए आपको क्या करना है कि हमें इन तीनों पॉइंट्स से 2 साइड्स जनरेट करनी है। साइड्स को वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर सी ए वैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे साइड्स का, और आप देखेंगे कि एनी 2 मैग्नीट्यूड्स सम विच इज इक्वलेंट टू द थर्ड मैग्नीट्यूड देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। नो फॉर्मेशन ऑफ एनी ट्राइंगल बिकॉज दे आर ऑन ए लाइन। सो प्रूव दैट। सो लाइकली यू सॉल्व इट। अगर आपको 3 वेक्टर्स दे देता है, बोलता है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स से शो करो, तो आपको क्या करना है, ए बी बी सी सी ए 3 साइड्स कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। देर आफ्टर क्या करना है,
मैग्नीट्यूड लेना है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को 4 डिवाइड कराओ और जस्टिफाइड कराओ और चेक एज इट एग्जैक्टली फुलफिल देन अप्लाई इट. So again students, 10.3 we have discussed completely in this lecture. You solve in your notebooks, understood all in a proper manner. Expect you are doing very well in your copies and your understanding the content is very clear. Again thank you very much.